Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of design of reinforced concrete structure with subject code 2170607, which offered in 7th semester Gujarat Technological University. Today deliver lecture topic design of retaining wall example. Previous lecture we will discuss retaining wall example. Today another example of retaining wall. This is retaining wall. Component of retaining wall. This is stem, toe slab, heel slab और यहाँ बॉटम में शियर की. ठीक है. तो कंपोनेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल और जो आज हम लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, लेक्चर डिलीवर हो रहा है, उसमें बेसिक डायमेंशन ऑफ रिटेनिंग वॉल, जो रिटेनिंग वॉल का बेसिक डायमेंशन है वो हम कैलकुलेशन करेंगे और जीटीयू में और 3 नंबर में क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में होगा. ठीक है. 4 नंबर में चेक फॉर स्टेबिलिटी और 7 नंबर 7th मार्क में स्टीम की डिजाइन या टो की डिजाइन या हिल स्लेब की डिजाइन. ठीक है. तो टुडे बेसिक डायमेंशन ऑफ रिटेनिंग वॉल का एग्जांपल हम करेंगे. ठीक है. एग्जांपल डिजाइन अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल retain earth of 4 meter height with following requirement. Such as pressure 15 kilonewton per meter square, unit weight of soil 18 kilonewton per meter square, soil bearing capacity 150 kilonewton per meter square. ठीक है. Angle of internal friction phi 30 degree. Coefficient of friction between base and soil mu 0.55
use M20 grade concrete and Fe415 grade of steel. Design various component means design of stem, design of toe slab, design of wheel slab, design of shear key. ठीक है, carry out usual stability check. ठीक है, so today basic dimension of retaining wall calculation. ठीक, example इस लेक्चर में हम given data FCK is equal to 20 Newton per mm square. Characteristic strength of concrete. Characteristic strength of steel 415 Newton per mm square. Angle of repose 30. Unit weight of soil 80 kilonewton per meter square. Soil bearing capacity Q is equal to 150 kilonewton per meter square. Surcharge angle Q is equal to 50 Newton per mm square. Mu is equal to 0.55. ठीक है. So step number 1, coefficient of earth pressure, active earth pressure और passive earth pressure दोनों हम कैलकुलेशन करेंगे. So first of all active earth pressure, coefficient of active earth pressure Ka is equal to 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi is equal to 1 minus phi की वैल्यू जो है वो 30 दे रखा है गिवन डेटा में. 1 minus sin 30 plus divided by 1 plus sin 30 is equal to Ka is equal to 1 by 3. ठीक है, तो coefficient of active earth pressure 1 by 3, coefficient of passive earth pressure Kp is equal to 1 divided by K. तो 1 divided by K की वैल्यू है 1 by 3, तो Kp coefficient of passive earth pressure 3. स्टेप नंबर 2, प्रीलिमिनरी डायमेंशन, बेसिक डायमेंशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेप्थ, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का कैलकुलेशन करेंगे. उसमें हमें रिक्वायरमेंट है गामा और सोइल बेरिंग कैपेसिटी. गामा सोइल डेंसिटी ऑफ सोइल 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और सोइल बेरिंग कैपेसिटी जो हमने दिया है वो सोइल की है 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So the minimum depth of foundation D minimum is equal to Q0 divided by gamma bracket of 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi square. Q is equal to 150 divided by 80. 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi is equal to K. K is equal to 1 by 3 square. So minimum depth 0.925 मीटर प्रोवाइड. जो यहाँ पे जो डेप्थ मिले उससे हम थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड करेंगे. प्रोवाइड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर. ओवरऑल हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल, बेसिक हाइट सोइल की 4 मीटर दी थी, फुटिंग की जो हाइट है 1 मीटर है, तो ओवरऑल हाइट रिटेनिंग वॉल कैपिटल एस 5 मीटर हो गई. ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रिटेनिंग की वॉल 5 मीटर और स्मॉल एज हिल स्लेब की जो वैल्यू बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक स्लेब की वैल्यू, तो वो हो गया स्मॉल एज. ठीक है, दिस इज प्रेशर डायग्राम. सरचार्ज एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे प्रेशर डायग्राम उसको ऐसा बनेगा. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ट्राइंगुलर पोर्शन है. रेक्टेंगुलर पोर्शन के ए इंटू सरचार्ज जो दिया है हमें 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे के एक्टिव प्रेशर इनटू गामा डेंसिटी ऑफ सोइल इनटू हाइट, टोटल हाइट. ठीक है, तो बेज विड्थ अब हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं बेज विड्थ बी. बेज विड्थ बी for T-shaped retaining wall, the minimum base width may be taken as B is equal to under root 3P divided by 2 gamma. P मतलब प्रेशर, जो प्रेशर डायग्राम हमें इंडिकेट अभी मैंने किया उसमें से हमें लेना है एरिया. ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन है रेक्टेंगुलर
तो 1/2 इंटू के 1/2 इंटू बेज, ये बेज हो गया, इंटू हाइट, के इंटू गामा इंटू हाइट प्लस बेज इंटू हाइट, रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो के गामा डेंसिटी सरचार्ज एंगल इंटू हाइट। तो 1/2 एक्टिव अर्थ कोएफिशिएंट, 1/3 गामा सोइल डेंसिटी ऑफ सोइल, हाइट के 1/3 क्यू 15 हाइट 575 प्लस 25 प्रेशर हो गया 100 किलो न्यूटन। B is equal to under root 3 into 100 divided by 2 into 18, तो B is equal to 2.88. Consider toe width 1/3 into B, 1/3 into 2.886 is equal to 0.96. Provide toe width 1 meter and provide total base width 3.35 मीटर। तो कैलकुलेशन किया उससे हम थोड़ा ज्यादा लेंगे, ठीक है। थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, अभी हमने कैलकुलेशन किया है, टू की विड्थ 1 मीटर और टोटल विड्थ 3.35 मीटर। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं थिकनेस ऑफ बेस स्लैब equivalent height of surcharge Q by gamma is equal to 15 by 18.80. Total height 5 plus 0.83, 5.83 meter. Thickness h dash by 12 plus 2h dash by 50. h dash की वैल्यू है वो हमें अभी कैलकुलेशन किया 5.83 डिवाइड बाय 12 टू 5.83 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 148 टू 0.35, ये दोनों वैल्यू है उसके बीच की वैल्यू लेना है, ठीक है। प्रोवाइड यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ बेस स्लैब 0.45 मीटर। थिकनेस ऑफ steam at base, pressure at the base of steam, ये थिकनेस हो गई 0.45 मीटर। अब हम जो थिकनेस फाइंड आउट कर रहे हैं ये थिकनेस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो लेना है, टोटल हाइट नहीं लेना है, ठीक है। प्रेशर एट बेस हाइट के गामा इंटू हाइट इंटू के ए इंटू क्यू। तो हाइट कितने लेंगे 5 माइनस 0.45 बात करेंगे तो 4.55। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एज बेस ऑफ स्टील 1/2 इंटू के ए क्यू इंटू हाइट h इंटू 2 प्लस 1/2 के गामा इंटू हाइट h by 3, बेस इंटू हाइट इंटू h by 2 और बेस इंटू हाइट इंटू h by 3। दो प्रेशर लग रहे हैं, एक h by 2 डिस्टेंस पे लग रहा है और एक लग रहा है h by 3 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिगर में बताया h by 2 P प्रेशर 1 और यहाँ पे P प्रेशर 2 h by 3 डिस्टेंस। कुछ नहीं है, एरिया इंटू सीजिस डिस्टेंस लिया है, ठीक है। जो सबसे रेक्टेंगुलर है उसका सीजिस डिस्टेंस h by 2 है और ट्रायंगल है उसका सीजिस डिस्टेंस h by 3 है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे के 1/3 क्यू 15 हाइट 4.5 डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 के 1/3 गामा 18 हाइट 4.55 स्क्वायर h by 3 into 4.55 divided by 3, तो 51.75 plus 94.19 is equal to 144.94 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम फैक्टर मोमेंट में उसे कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 145.94
mu is equal to 218.91 kilonewton into मीटर। अब mu लिमिट का जो फॉर्मूला है IS 4/6 पेज नंबर 96 पे, mu लिमिट इज इक्वल टू 136 into max by d ब्रैकेट में 1 minus 142 into max by d b d स्क्वायर है ck, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे mu लिमिट और बाकी सारे वैल्यू पुट करेंगे और d फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो mu जो लिमिट की वैल्यू अभी हमने mu फाइंड आउट करा वो mu की जगह रखेंगे, x max by d की वैल्यू हम IS 4/6 पेज नंबर 70 पे ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से लेंगे। तो IS 4/6 2000 पेज नंबर 70 ग्रेड हमारा है 415, तो जो x max by d की वैल्यू है 0.48, mu की वैल्यू 218.91 into 10⁻⁶ is equal to 136 into 0.48 bracket में 1 minus 0.42 into 0.48 into width of retaining hole 1 meter, तो 1000 into d square into 20। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 0.138 into 20 into 1000 into d square 2760 d square is equal to 218.91 into 10⁶ divided by 2760, d square is equal to 79315.2 अंडर रूट करेंगे तो 281.62 से जो है विविध था उसे राउंड फिगर में ले लेंगे। d is equal to 300 mm। कंसीडर 50 mm over total d for steam 300 plus 50, तो स्टीम की विड्थ हो गई 350.35। ठीक है, प्रोवाइड टोटल डेप्थ ऑफ स्टीम 350 mm और मीटर में 0.35। प्रोवाइड टॉप विड्थ ऑफ स्टीम 0.2 mm एज्यूम किया है 0.2 mm। ठीक है, और बॉटम कितना हो गया 0.35। विड्थ ऑफ हील टोटल बेस बी कितना है 3.35 माइनस टीम की विड्थ 1 मीटर माइनस टो की थिकनेस 0.35, तो हो गया हिल 2 मीटर। ऑल्सो प्रोवाइड शियर की साइज 0.35 into 0.5 मीटर, विड्थ शियर की 0.35 मीटर एंड डेप्थ 0.5 मीटर बिलो द बेस प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ द वॉल। तो रिटेनिंग होल का जो हमने कैलकुलेशन बेसिक डायमेंशन का किया है अभी, उसके नेक्स्ट जो हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे वो स्टेबिलिटी का चेक करेंगे, उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टीम, डिजाइन ऑफ व्हील स्लेब, डिजाइन ऑफ टो स्लेब। ठीक है, सो जीटीयू में जो क्वेश्चन आता है रिटेनिंग होल का वो 3 नंबर में बेसिक डायमेंशन, 4 नंबर में स्टेबिलिटी चेक और 7 नंबर में 3 डिजाइन है, डिजाइन ऑफ स्टीम, डिजाइन ऑफ व्हील, डिजाइन ऑफ टो, 3 में से कोई भी एक डिजाइन। ठीक है, थैंक यू।